Hi guys, welcome back to Logri. How are you all doing? I hope all of you are doing great, all of you are fine and safe. आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि आपको ड्रॉप लेना चाहिए या नहीं. यू शुड और शुड नॉट टेक अ ड्रॉप फॉर क्लैट. ये है सेशन नंबर 2. इफ यू हैव नॉट सीन माय सेशन नंबर 1, then what are you doing? Session number 1 is very important. You should watch that session. Link of the session is in the description box. That session talks about what should you do as a dropper. If you're planning to take a drop, what are the things that are necessary before you say yes, I'm going to take a drop. It is very important that you watch that video. If you have not seen that video, link is in the description box. Do check out that video. And also I have taken a session on what if you are not getting an NLU, what are the other options that are available. Not only I have talked about other options, I have also made sure that I talk about the advantages and disadvantages about those options. So please do watch that video as well. Link is in the description box. So today we are going to talk about that should you take a drop or not. Let's get started with today's session. It is a very important session. You're going to decide with me finally that should you take a drop or not. We're going to talk about everything. This is a very important session because you should know what you are signing up for. If you are saying yes to drop and if you are saying no to drop, right? Let's get started. You need to remember there are two kinds of droppers. Mean there are two kinds of dropper. One is who make it to an NLU, right? Who make it to an NLU, and those who do not make it to an NLU, right? One is the one who makes it to an NLU, and there is one who doesn't makes it to an NLU. So this is a very important point. ये point याद रखना है कि जरूरी नहीं है कि अगर ड्रॉप लेंगे तो 100% चांसेस हैं कि हमारी एडमिशन अगले साल नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी में होगी. राइट ये वाला पॉइंट हमारे दिमाग में क्लियर रहना चाहिए बिकॉज देयर आर सो मेनी स्टूडेंट्स हु थिंक हु अज्यूम दैट इफ आई विल टेक अ ड्रॉप 100% आई विल बी गेटिंग एडमिशन इन नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी. नो there are students who take drop and the number is huge. I cannot share their messages, the messages that I get from students who take a drop and who are not able to get into an NLU. I don't want my students to feel like that. If you are taking drop, you need to be clear in your head that yes, I'll give my 100%, I'll study rigorously for all the months that I have, but even if I'm not able to get into an NLU, I won't take it to my heart. I won't go into depression. I won't let my mental health trigger. This is a very important point that you need to make clear in your head. आपको ये बात अपने दिमाग में क्लियर करनी पड़ेगी कि अगर NLU नहीं मिलता तब भी ठीक है. अगर तुम ये कर सकते हो तो आधी बाजी तो तुमने यहीं पे जीत ली. क्योंकि मोस्टली जो ड्रॉपर्स होते हैं वो ये लेकर चलते हैं कि होगा ही होगा. नहीं, अगर आप अपना पहले तो रूटीन फॉलो करोगे, अपना सिलेबस अच्छे से पढ़ोगे, जो चीज़ें हैं वो करनी है वो करोगे. उसके लिए भी अगर वीडियो चाहिए तो कमेंट डाउन बिलो, ठीक है. वो चीज़ें करोगे और वो अच्छे से करके फिर एग्जाम देकर आओगे, फिर आपके चांसेस बनेंगे. नॉट ओनली बाय टेकिंग द डिसीजन दैट यू वांट टू टेक अ ड्रॉप, दैट इज नॉट इनफ दैट you will make it to an NLU. Right? Why do you want to take a drop? Now, this is a question I ask you again and again. Why do you want to take a drop? Now, some of the options. I had decided in 12th only that I will take a drop. So, बहुत सारे बच्चे ऐसे करते हैं, वो कहते हैं कि हम पहले बोर्ड एग्जाम्स पे फोकस करेंगे. ठीक है, बोर्ड एग्जाम्स हो गए तो हमने सोचा ही था कि हम क्लैट जो है वो एज अ ड्रॉपर ही देंगे. तो इस वाली कैटेगरी में तो यू शुड गो हेड एंड टेक अ ड्रॉप. पहले से ही प्लान था. I got to know about CLAT exam late. Now there are students जिनको बहुत लेट पता चला, बट इसके अंदर भी एक चीज़ जो है आपको डिसाइड करनी पड़ेगी कि क्या अभी आपने बोर्ड्स दिए, ठीक है, और क्या आप अभी रिगरसली पढ़ने के लिए तैयार है 5 to 6 मंथ्स के लिए. क्योंकि दिसंबर के अंदर आपका जो है, दिसंबर 2022 के अंदर आपका क्लैट 2023 है इस बार. तो क्या यू कैन स्टडी? इफ यू आर सेइंग येस टू इट देन येस यू शुड गो फॉर इट. I couldn't manage CLAT preparation along with boards. बहुत बच्चे ये कहते हैं. My parents want that I should join an NLU. अगर आपका ये ऑप्शन है ना कि पेरेंट्स, रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स कह रहे हैं कि ड्रॉप ले लो, देखो आपके पेरेंट्स क्या कहते हैं ये बहुत मैटर करता है बिकॉज वो आपके पेरेंट्स हैं. बट पढ़ाई, दे विल नॉट हैव टू स्टडी. दे कैन जस्ट इन्वेस्ट इन यू. दे कैन गिव यू मनी टू बाय बुक्स. दे कैन गिव यू मनी टू मेक श्योर दैट वॉट एवर यू नीड for the preparation that is there with you, but they cannot study for you, right? So if you want to take a drop, if you want to say, if you are saying I want to be in an NLU by hook or crook and I can study for as many hours as whatever it takes to get into an NLU, I'm ready to do it and I mean it, मैं पढ़ूंगा,
तब ड्रॉप लेना, ठीक है। सब सारे ऑप्शन सही हैं ये सारे। ड्रॉप तब लेना अगर तुम ये बोलने को तैयार हो कि ठीक है, अगर मुझे 12 घंटे भी पढ़ना पड़ेगा, इवन इफ आई हैव टू स्टडी फॉर 12 आवर्स, 14 आवर्स, 8 आवर्स, 7 आवर्स, 10 आवर्स, आई विल स्टडी। इवन इफ देयर इज अ टॉपिक दैट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट व्हेन आई रीड इट वंस, आई एम गोइंग टू रीड इट 10 टाइम्स, बट आई एम गोइंग टू मेक श्योर दैट आई अंडरस्टैंड दैट टॉपिक। इतनी स्ट्रॉन्ग विल पावर है तो लो ड्रॉप यार, बनता है फिर तो ड्रॉप लेना तुम्हारा, राइट। माई फ्रेंड इज टेकिंग अ ड्रॉप सो आई थिंक आई शुड। ये वाला तो कभी मत लेना कि फ्रेंड बोल रहा है, फ्रेंड ले रहा है। तो फ्रेंड जो होता है ना, जो अब वाले फ्रेंड्स हैं, बहुत कम फ्रेंड्स रह जाते हैं जब आप एक बार जॉब में चल जाते हो, ठीक है। बहुत कम फ्रेंड्स, अगर आपके 10 फ्रेंड्स है ना, तो जॉब के बाद ये लगा लो आज के ज़माने में 2 ही रह जाते हैं साथ में। दैट इज द ट्रूथ, एवरीवन गेट्स बिजी, ओके। एनी अदर रीजन, कोई और रीजन है, बट उसमें से सबसे बड़ा रीजन अपने आप से ये पूछना है कि क्या मैं सब कुछ करने को तैयार हूँ, ठीक है। अगर मैं ड्रॉप लेने जा रहा हूँ तो सब कुछ करने को तैयार हूँ। वही जो सेशन नंबर 1 के अंदर मैंने बात करी थी कि रिग्रेस स्टडी आवर्स डालने में प्रॉब्लम आती है बच्चों को। इन द मिडल ऑफ देयर प्रिपरेशन वो गिव अप कर जाते हैं कि मैं इतना नहीं पढ़ सकता, मेरे से नहीं होगा। दिस इज द रियलिटी ऑफ ड्रॉप, ठीक है। अब एक और जो क्वेश्चन है, कैन आई स्टडी फॉर 8 आवर्स एवरी डे फॉर नेक्स्ट 5 मंथ्स, ये क्वेश्चन है, ये मिनिमम है। मिनिमम एग्जाम के पास तो आपको पता ही नहीं आप कितने घंटे पढ़ोगे, ठीक है ना। जो डिमांड होगी वो फुलफिल करनी पड़ेगी। वाई डू यू थिंक यू कैन क्रैक लैट, वाई डू यू थिंक यू कुडंट क्रैक लैट, ठीक है ना। अब आपको ये क्यों लगता है कि आप जो आने वाला क्लैट है वो क्रैक कर देंगे, और जो पिछला क्लैट है वो आप क्यों नहीं क्रैक कर पाए। देखिए, मेक श्योर यू राइट इट डाउन। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप एक नोटबुक लें, ठीक है, एक नोटबुक लें और उसके अंदर ये लिखें कि आपको क्यों लगता है, ठीक है। जो उन्होंने आपको OMR शीट प्रोवाइड करी है, ठीक है ना, OMR शीट जो कार्बन कॉपी दी है OMR शीट की, क्वेश्चन पेपर, ठीक है ना, क्वेश्चन पेपर भी है, OMR शीट भी है। तो उसमें देखो कि क्यों, कि क्या गलती मैंने करी, कहाँ कहाँ पे गलती करी। जो ऑफिशियल आंसर शीट है उसमें से आंसर्स निकाल कर, ठीक है ना, उसके बाद उसको एनालाइज करो कि कहाँ गलती हुई। सेक्शन वाइज देखो। अगर तुम चाहते हो कि एक पर्टिकुलर वीडियो पेपर एनालिसिस पे होनी चाहिए, देन आई एम रेडी टू डू दैट ऑल्सो, कॉमेंट डाउन बिलो। तो एनालाइज करो, 2 से 3 बार एनालाइज करो, क्योंकि हर बारी एक नई मिस्टेक पता चलेगी, ठीक है। नाउ इफ यू नो द मिस्टेक्स, तो आपको पर्टिकुलर ये मिस्टेक्स जो है एटलीस्ट आप ये दोबारा रिपीट नहीं करोगे ना, तो वो मिस्टेक्स पता होनी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने दोबारा ड्रॉप भी ले लिया, वो पिछली बार वाली गलती अगली बार रिपीट कर दी, तो कोई फ़ायदा नहीं हुआ ड्रॉप लेने का। ड्रॉप लेने का फ़ायदा तब है कि बेयर मिनिमम जो पिछली गलती है वो नहीं होनी चाहिए दोबारा, ठीक है। उसके बाद इसके अंदर और है, आपने फॉर एग्जांपल न्यूज़पेपर नहीं पढ़ा, आपने कोई राइट मटेरियल्स नहीं चूज़ करे, ठीक है। 2 to 3 सब्जेक्ट्स हैं जिस पे काम करना पड़ेगा, कोई और रीज़न कुछ भी हो सकता है। बहुत सारे रीजंस मैंने अपने सेशन नंबर 1 में भी डिस्कस किए थे। एंड अगर आप पर्टिकुलर रीजंस कोई हैं आपके जो आपको लगता है अलग है, कॉमेंट डाउन बिलो, आई वुड लव टू हेल्प यू आउट, ठीक है। नहीं तो आप मेरे साथ 1-on-1 सेशन भी बुक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ये पेड सेशन होता है, फ्री के अंदर बात करनी है कॉमेंट सेक्शन, और इंस्टाग्राम @IamLawGree के नाम से हूँ, वहाँ पे आप बात कर सकते हैं, राइट। तो ये बहुत ज़रूरी है। प्रॉब्लम क्या थी, क्यों नहीं हो पाया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बच्चे बोलेंगे हमारी तो 10 डेज की प्रिपरेशन थी, 15 की थी, 20 की थी, 30 की थी, 35 की थी, 2 ईयर्स की थी, 1 ईयर की थी, 6 मंथ्स की थी, 1 मंथ की थी, कुछ भी था। आपको पता होना चाहिए कि क्या वो चीज़ें हैं जो आपने गलतियाँ करी, ठीक है। प्रॉब्लम्स और क्वेश्चंस यू नीड टू बी क्लियर अबाउट। तो सबसे पहले जो प्रॉब्लम और जो क्वेश्चंस यू नीड टू बी क्लियर अबाउट इज, कैन यू स्टडी फॉर 7 to 8 आवर्स अ डे, डू यू हैव द विल पावर और डिसिप्लिन, ठीक है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है, क्योंकि बच्चे इसी बात पे गिव अप करते हैं। आप कहोगे ये बार बार दीदी यही क्यों बोल रही है, क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि माई एक्सपीरियंसेस जितने मैक्सिमम बच्चे मुझे मिडल ऑफ द प्रेपरेशन में कॉन्टैक्ट करते हैं, वो यही कहते हैं कि हम मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे, हमने अपनी प्रेपरेशन गिव अप कर दी। तो अगर मतलब क्या तुम पढ़ सकते हो सच में, कैन यू बी इंथुजियास्टिक विद प्रेपरेशन फॉर 5 to 6 मंथ्स, क्या जो तुम्हारे में आज फायर है, जो आग जल रही है, ये क्या ये आग तुम्हारी 5 महीने तक जलती रहेगी, या अभी इतनी ज़्यादा आग है और उसके बाद वो कम 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 होते वो बुझ जाएगी, कि नहीं हो सकता, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद, आर यू इमोशनली स्ट्रॉन्ग, दे आर गोइंग टू बी डेज व्हेन योर पेरेंट्स, नेबर्स, रिलेटिव्स विल टॉन्ट यू। ये इंडियन सोसाइटी में ऐसा ही होता है, लोगों को अपने से ज़्यादा दूसरों की लाइफ की बहुत ज़्यादा चिंता होती है, ठीक है। और अगर दूसरे सक्सेसफुल हो जाएं तो बहुत ही दुख होता है, ये दिस इज़ द रियलिटी ऑफ लाइफ, ठीक है। तो उसके अंदर कभी कभी पेरेंट्स कभी भी बुरा नहीं चाहते हैं। पेरेंट्स ही, मम्मा और पापा, 2 लोग जिंदगी में भगवान हमें ऐसा देता है
जो हमारा कभी भी बुरा नहीं चाहते, ठीक है। मे बी वो हमें कोई चीज़ें कह रहे हो जो हमें सही नहीं लग रही हो बिकॉज ऑफ कि उनको कोई नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, या उनको लगता है कि ये ठीक है, बट वो हमारा कभी बुरा नहीं चाहते, ठीक है। बाकी सब दुनिया के अंदर तुम्हारा बुरा चाह सकते हैं, और अगर मतलब और वो तुम्हें फालतू में टॉन्ट्स भी करेंगे, अरे ड्रॉप लिया है क्या कर रहे हो, हो जाएगा नहीं होगा, तो ये सब चीज़ें वो बोलेंगे। तो क्या तुम इतने स्ट्रांग हो अगर कोई तुम्हें ऐसी कुछ बेतुकी सी बात या कुछ इररिलेवेंट बात कहे जाते हैं, तो तुम कहोगे कि हाँ ठीक है ये तो बोल गए, बट मैं अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करूंगा, ठीक है। इतने स्ट्रांग होने चाहिए। सोशल मीडिया पे लोग जिनकी एनएलयूज में हो गए, तुम्हारे साथ बहुत सारे बच्चे कांटेक्ट में आए होंगे जो स्कूल में से जिन्होंने क्लाट की तैयारी करी होगी, या कोचिंग गए थे तो कोचिंग में, या कोई ग्रुप ज्वाइन किया हुआ था वहाँ पर, और वो अब फेसबुक पे हैं, इंस्टाग्राम पर हैं, वो अपनी फोटोज डालेंगे, ठीक है, एनएलयूज के आगे खड़े होकर, या अपना कुछ भी कोई मूड कोर्ट में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो क्या तब तुम मतलब अपने आप को समझा पाओगे कि हाँ ठीक है, वो एज अ मोटिवेशन यूज करोगे अगली बार इसके आगे मैं खड़ी होंगी, या फिर तुम मायूस हो जाओगे कि यार मेरा क्यों नहीं हुआ इस बारी, उसका क्यों हो गया। ये कंपैरिजन हम ना चाहते हुए भी करते हैं कि उसका क्यों हो गया, मेरा क्यों नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद कैन यू क्रिएट अ प्लान एंड स्टिक बाय इट। और एक और क्वेश्चन, अगर तुम्हें बीच में लग रहा है कि नहीं मेरे से नहीं हो सकता, मोटिवेशन चली गई है, जो आग लगी थी ये खत्म हो गई है, तो मोटिवेशन कैसे कर, अपने आप को मोटिवेट कैसे करोगे, हाउ यू विल मोटिवेट योरसेल्फ, ये अपनी नोटबुक में अभी लिख लो। वही चीज पढ़कर अपने आप को मोटिवेशन देनी होगी तब, ठीक है। तो मोटिवेशन रखना, मोटिवेटेड रखना अपने आप को एग्जाम के दिन तक, एग्जाम जब तक दे नहीं देते उसके आखिरी मिनट तक, आखिरी सेकंड तक मोटिवेटेड रहना पड़ेगा, तब ही जाकर आप एग्जाम क्लियर कर पाओगे। एंड मोटिवेशन जो है ये खुद से अगर आए तो बहुत ही ज़्यादा बेहतर रहती है, बिकॉज खुद की जो मोटिवेशन होती है वही आपको ड्राइव करती है, वही आपको पुल, आपको फोर्स करती है कि हाँ आप पढ़ते रहो, और जो रिक्वायरमेंट है प्रिपरेशन की वो आप करते रहो, ठीक है। वॉट इफ यू डोंट क्लियर द एग्जाम द नेक्स्ट टाइम टू। अब ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है कि अगली बार भी अगर एग्जाम ना क्लियर हो, एक तो अपने आप को समझाना कि हाँ यार क्या पता अगली बार भी एग्जाम मेरा क्लियर ना हो, और एक जो है वो अपना सोचना भी तो पड़ेगा ना। अगर तुम फुल फ्लेज ड्रॉप ले रहे हो तो दो टाइप के ड्रॉप्स होते हैं, एक तो फुल फ्लेज ड्रॉप होता है जहां पे तुम कह रहे हो कि मैं कहीं पर भी कुछ नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ क्लैट को ही टाइम दूंगा। दूसरा ड्रॉप होता है जिसके अंदर आप पार्शियल ड्रॉप लेते हो, आप कहते हो कि ठीक है जो मुझे जहाँ एडमिशन मिले किसी लॉ स्कूल में या ग्रेजुएशन के किसी कोर्स में एडमिशन ले लेता हूँ और साथ साथ पढ़ते रहते हो, ठीक है ना। तो कुछ भी अगर तो पार्शियल ड्रॉप है तो तुम्हारा तो प्लान भी है कि ठीक है अगर क्लास नहीं हुआ तो मैं अपनी ये ग्रेजुएशन कंप्लीट करूंगा, जो करना है वो आगे करूंगा, ठीक है। और अब यहाँ पर जो अदर ऑप्शंस वाली वीडियो है वो देख सकते हैं आपकी क्या क्या ऑप्शंस रहती हैं आपकी। उसके बाद फुल फ्लेज ड्रॉप में तो आपको ये भी प्लान करना पड़ेगा ना कि अगर मेरा नहीं क्लियर हुआ अगली बार भी क्लैट तो मैं क्या करूंगी, ये प्लान होना चाहिए कि हाँ ठीक है अगर ये नहीं हुआ तो ये हुआ, ठीक है। व्हाट इज द बैकअप प्लान, ठीक है। अब एक तो है कि 6 मंथ्स तो अभी आपके ये पड़ेंगे, ठीक है। मान लो जब भी आपका ड्रॉप आपने लेना है उसमें से 6 मंथ, जैसे जुलाई से लेकर दिसंबर का टाइम है, दिसंबर में क्लास 2023 हो रहा है, ठीक है। और फिर 6 मंथ्स आपको और पढ़ना पड़ेगा, या तो आप 6 मंथ्स और पढ़ोगे, ए लेट का एग्जाम होगा, स्लैट का एग्जाम होगा, एमएचसीटी का एग्जाम होगा, एनलैट का एग्जाम होगा। आप कह रहे हो कि ठीक है अगर दिसंबर में मुझे लगा मेरा पेपर सही नहीं हुआ, आप देख रहे हो रिजल्ट बहुत जल्दी आ जाता है, तो पता दिसंबर में, दिसंबर एंड तक पता चल जाएगा कि हैप्पी न्यू ईयर है या नहीं, अभी और पढ़ना पड़ेगा, और न्यू ईयर जो है वो बीच में आप सेलिब्रेट करोगे। तो या फिर तो आप कहोगे कि हाँ ठीक है मैं और 6 मंथ पढ़ने को तैयार हूँ यहाँ से जनवरी से लेकर जून जुलाई तक जब भी एग्जाम्स होते हैं 2023 के अंदर। तो एक तो ये है, ठीक है। बट ये बैकअप प्लान भी 6 मंथ्स का ही है। 6 मंथ्स के बाद अगर यहाँ पे भी कुछ नहीं बनता है तो आप कह रहे हो कि मैं सीयूईटी का एग्जाम लेकर मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीए बीबीए, ये जो भी मेरी क्राइटेरिया फुलफिल होता है मैं वो कर लूंगी, ठीक है। ये भी एक प्लान, अच्छा प्लान है कि आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से जा रहे हैं, अच्छी जगह से ग्रेजुएशन करने का सोच रहे हैं, या फिर आप कह रहे हैं कि मैं कोई भी लॉ स्कूल के अंदर एडमिशन ले लूंगी, ठीक है ना। तो ये बात आपको क्लियर रखनी पड़ेगी अपने दिमाग में कि अगर ड्रॉप से नहीं बनती है बात तो मैं क्या करूंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। जो मैं वीडियो की बार बार बात कर रही थी वो ये है, शुड यू टेक अ ड्रॉप फॉर क्लास 2023, क्या आपको ड्रॉप लेना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो सेशन नंबर 1 लिया है यहाँ पे मैंने आपको एक रूटीन शेयर करी है, और मैंने कहा है कि वो रूटीन आप थोड़े दिन के लिए फॉलो करिए ताकि आपको पता चले कि आने वाले 6 मंथ्स आपके कैसे लगने वाले हैं। तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे अगर आप ये शेड्यूल फॉलो कर पाते हैं फिर तो आप पक्का से मिनिमम जो है वो रूटीन तो फॉलो कर पाएंगे अपना जो क्लाट के लिए, और अगर वो रूटीन आप फॉलो कर गए तो क्लाट भी क्लियर होने के चांसेस बहुत बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगी। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल बटन पे हिट कर देना, कमेंट डाउन बिलो एंड शेयर योर प्रॉब्लम्स विद मी। आई वुड लव टू हेल्प यू आउट। दैट्स इट, लॉगरी साइनिंग ऑफ। आई विल सी यू सुपर सून। बाय एंड टेक केयर।